जमीयत जिंदा है, जिंदा है जमीयत जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जिंदा है जमीयत जिंदा है, जिंदा है जमीयत जिंदा है। کہ ظالموں شرم کرو, کچھ حیا کرو. جی جناب, یہ کیا مقصد ہے جی آپ کا بل گلے میں ڈالنا؟ ہاں, یہ جو اس وقت بجلی کے بل ہیں یہ لوگوں کے موت کا پھندا بنے ہوئے ہیں بھائی. یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ لوگوں کے لیے موت کی پھانسی کا یہ پھندا ہے. جو لوگ بیچارے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. آج جماعت اسلامی جو ہے پوری سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے. باقی ہمیں جو سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ان کو کوئی غریب عوام کی کوئی تکلیف نہیں ہے. کوئی جیل میں ہے, کوئی غریب عوام کوئی جیل میں ہے, کوئی لندن میں ہے, کچھ اور لندن میں فرار کوئی دبئی میں بھاگے ہوئے ہیں, فرار ہو چکے ہیں, کچھ نیب کے کیس کھل رہے ہیں, اور بھی راتوں رات شہباز شریف صاحب بھی بھاگے ہیں. بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, خون ہے گا تو جم جائے گا. خاکے صحرا پر جمے یا کفے قاتل پر جمے, خون دیوانہ ہے, دامن پر لپک سکتا ہے. خون شعلۂ تند ہے, خرمن پر لپک سکتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلے, کہیں نعرے, کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. خون سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. خون پھر خون ہے, سو شکل بدل سکتا ہے. خون پھر خون ہے, سو شکل بدل سکتا ہے. ایسی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی بات ہی کیا. ظلم پر ظلم ہے, آغاز سے انجام تک. آج ہم جماعت اسلامی کے دھرنے میں کوریج کے لیے آئے ہیں. آج جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو تیسرا دن ہے. یہ مہنگائی کے خلاف, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف, یہ ملک میں ناانصافی, بیڈ گورننس کے خلاف, اور پاکستان کی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے دھرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اس وقت ہزاروں جماعت اسلامی کے ورکرز, عوام الناس اس دھرنے کی سپورٹ کے لیے یہاں پر موجود ہیں. میلوں تک مال روڈ پر گورنر ہاؤس کے سامنے اس وقت عوام کا جمع غفیر جمع ہے, اور جماعت اسلامی والے اس چیز کا تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستان کی قوم کو اس مشکل وقت میں, اس گرانی کے وقت میں, اس مہنگائی کے طوفان میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ہماری تمام تر جماعت سیاسی پارٹیاں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں, اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں. اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی بات کرتی ہے, جو پاکستان کے نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی بات کرتی ہے, وہ جماعت اسلامی ہے. پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی, چاہے وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت نہیں کی. لیکن صرف جماعت اسلامی ہے جس نے آج تک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا. اس ملک میں ہوئی زلزلے آئے, طوفان آئے, سیلاب آئے, آپ کو جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جنہوں نے عبدالستار اخوانی جیسے محب وطن, غیرت مند لوگ پیدا کیے, نعمت اللہ ایڈوکیٹ جیسے لوگ پیدا کیے, جنہوں نے دنیا پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں انسانی خدمت کے وہ ریکارڈ قائم کیے جس کی مثال پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی. آج وہی جماعت اسلامی آج مال روڈ پر لاہور میں
गवर्नर हाउस के सामने महंगाई और लाकुनियत के खिलाफ धरना दे रही है। पाकिस्तान के अवाम को ये चाहिए कि जमाते इस्लामी का बढ़ चढ़ का साथ दे। हम पाकिस्तान की अवाम पिछले 1-1.5 साल से जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, मुल्क के अंदर जिस कदर महंगाई का तूफान आया, बिजली, गैस और हर फूड कमोडिटीज की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। किसी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान की अवाम के जख्मों पर मरहम नहीं रखा, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की अवाम की तकलीफों का जिक्र तक नहीं किया। उनको हल तो दूर की बात, सिर्फ जमात इस्लामी ही ऐसी जमात है जो हर वक्त अवाम के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ हर महाज पर होती है। इस वक्त हजारों की तादाद में जमात इस्लामी के वर्कर्स जमात इस्लामी के झंडे लेकर इस वक्त माल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन जमात इस्लामी के वर्कर्स में, नौजवानों में किस कदर जोश है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की 75 साल की तारीख देखी जाए तो कोई वाहिद पार्टी है जिनके लीडर्स ने अपने बच्चों की जान की कुर्बानी दी, चाहे वो सब। क्या मकसद है जी आपके धरने का? धरने का मकसद आपको पता ही है, आवाम के लिए ये धरना दिया जा रहा है। जो महंगाई, जो बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं कि हर जो मिडिल क्लास वैसे जैसे ख़त्म ही हो जानी है, इन्होंने ख़त्म करने का इरादा है। अच्छा जी, तो आप क्या समझते हैं इस किस्म के धरने देने से, एहतजाज करने से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत या हमारी रूलिंग लीड जो है वो राह रास्ते पे आ जाएगी? हाँ जी, जब आवाम का इकट्ठ होगा, जब आवाम इकट्ठी होगी, इत्तेफाक होगा, सब लोग बाहर निकलेंगे अपने हकूक के लिए, तो इंशाल्लाह ताला। और ये इस्लामी का मकसद यही है कि अवाम में ये शऊर पैदा किया जाए कि ये जो 1% तबका है अवाम को लूट रहा है, अवाम की रगों से खून चूस रहा है, इससे इसको टफ टाइम दिया जाए और इसको बताया जाए कि अवाम अब उठ खड़ी हुई है। अगर जब अवाम उठ खड़ी हो तो ये जालिम तबका भाग जाए। इस धरने का क्या मकसद है? देखिए जी, जो अवाम के ऊपर इन्होंने महंगाई का जो बम्ब गिरा दिया है, बिजली का जो बिलों के जो बम्ब गिरा दिए हैं, इसके खिलाफ तो अब निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब पहले तो फिर भी गुजारा हो जाता था, अब देखने को हमारे सामने बेशुमार केसेस ऐसे आए हैं कि लोगों ने बच्चों की बालियां, अपनी बच्चियों की बालियां बेच के बिल अदा किए हैं। किसी ने अपने घरों को गिरवी रखवा के अपना घरों का खर्चा चला रहे हैं। तो ये अब भी अगर अवाम सोई रही तो फिर समझ लें कि इसके बाद तो मौत है। जिंदा है जमीयत, जिंदा है, जिंदा है जमीयत, जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है, घोड़े भी खा के जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जिंदा है जमीयत, जिंदा है, जिंदा है जमीयत, जिंदा है। आज आप करने का मकसद है जो पाकिस्तान में इस वक्त लूट मार मची हुई है बिजली के बिलों की शक्ल में या पेट्रोल की कीमतों, पेट्रोलियम की कीमतों की शक्ल में। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह के लोगों को बिल आए हैं, लोगों का बच्चों की फीसें देनी मुश्किल हो गई हैं या घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। ये जुल्म जो है इसके खिलाफ हमें उठना होगा और हम इंशाल्लाह इसमें हर हद तक जाएंगे। ऐसी ही सादा, ऐसे ही मिडिल क्लास की पार्टियां जो है किसी मुल्क में तब्दीली जो है वो ला सकती है। आप देखिएगा, ये इनकी लाहौर की मेन लीडरशिप है। इनमें सदर हैं, सेक्रेटरी जनरल्स हैं, लेकिन इनके बैठने का अंदाज देखिएगा, कोई जरक बरक नहीं, कोई आलीशान कुर्सियां नहीं, कोई ऐसी आपको फजूल खर्ची इनके जलसों में, इनके पंडाल में नजर नहीं आती। इस किस्म की पार्टियां ही किसी मुल्क में तब्दीली के लिए, इस्लाह के लिए, आवाम की खिदमत के लिए अपना रोल अदा कर सकती है। अवाम अंदाज पूछती है कि आपके धरने का क्या मकसद है? आज तीसरा दिन है। धरने का मकसद जो है, पहली बात तो महंगाई है, महंगाई को कम से कम किया जाए, आम आवाम के लिए खुशहाली लेके आई जाए, और दूसरा इस्लामी कानून को राइज किया जाए, इस्लामी कानून की तरवीज की। आपके धरने इसका मकसद तो जो महंगाई है, बिजली, पेट्रोल और बाकी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उनका बेसिकली उसके लिए हमने ये धरना अरेंज किया है। अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें तो
75 या 72 जब से पाकिस्तान बना है तो 3 पार्टियां हुकूमत में रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो बिजली का जो इटसेल्फ अगर आप एग्जांपल ले लें तो इसके जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो ये तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। उस पर 3 मेजर आप अगर देखें उसकी शिक है। 94 के आईपी के साथ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली बेनजीर के दौर में जो है। उसमें कैपेसिटी पेमेंट है, फिर आपने जो पेमेंट करनी है वो डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है। दुनिया के किस मुल्क में होता है? अच्छा, अब तीनों पार्टीज PMLN ले लें, PPP ले लें, आपकी PTI ले लें, तीनों ने उन एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू किया है। तो देखिए, ये इनके तो अंकल है मलक रियाज, ठीक है, इनके अंकल है आरिफ नकवी, तो ये तो उनके साथ ही हैं, ठीक है। जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जो लोगों के लिए खड़ी हुई है, जो आम लोगों की जमात है, करप्शन से पाक है। तो मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि आप आगे बढ़ें और इस एक जो ईमानदार जमात है, ईमानदार लोग हैं और ग्रास रूट लेवल से आए हैं, आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो आप उनका साथ दें ताकि इस मुल्क के अंदर चेंज आए। और इन चोरों लुटेरों और जो तीनों चोरू चक्के हैं माजरत के साथ, तो उसमें PTI हो, PMLN हो, PPP हो, तीनों एक है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को सारी पार्टियों में जो अलियान अलिया भी है, फराह गोगिया भी है, जीजी पीरनिया भी है, जुल्फी बुखारी भी है और बुजदार में है। और जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो जिनमें बुजदार और कोई अलियान अली और फराह गोगी नहीं है। का एक केस भी जमात इस्लामी के किसी भी इवन एक काउंसलर पे भी नहीं है। बड़े लीडर को तो आप छोड़ दें। इन पार्टीज को अगर आप देखें तो PMLN को देखें, PPP को देखें, अभी जो तब्दीली के नाम पे आए थे उनका भी सेम वही प्रोटोकॉल था, ठीक है। उन्होंने भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक पाकिस्तान के सियाने का कौल है, अगर पाकिस्तान में 50% करप्शन कम हो जाए, 50% गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान चलेगा नहीं, पाकिस्तान दौड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में 76 साल से पाकिस्तान के ऊपर जो अशराफी हुकूमत कर रही है उनका एक ही एजेंडा था, चेहरे बदल के आते रहे और इस मुल्क को बेदर्दी से लूटते रहे और अपनी जायदादें बनाते रहे। हम आज जो आए हैं, हमारा इस वक्त ये हाल है कि हम ये पैगाम देने आए हैं कि अगर आप लोगों ने अब होश ना किया तो फिर आपकी गर्दनें होंगी और हमारे हाथ होंगे। अब बिना चीज ना, इसलिए कि ये पागल लोग जो है ना जी, ये अवाम की जंग लड़ रहे हैं। 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, अवाम के लिए बैठे हैं और अवाम को जगाएंगे और अवाम जागेगी। जब अवाम के मुंह से नवाला छीना जाएगा, उनके बच्चों के मुंह से फीडर छीना जाएगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे और इन हुक्मरानों को उनका हक देना पड़ेगा और इन्हें भागना पड़ेगा। वैसे भी ये भागते हैं इक़्तिदार के लिए, पाकिस्तान में आते हैं वाइसराय बन के, फिर जाके लंदन में पहुंच जाते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, अपने बच्चों के कारोबार इन्होंने वहां सेट किए हुए हैं। इनका तो यहाँ सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ अवाम को शऊर आता जा रहा है। ये पहला कतरा है बारिश का, इंशाअल्लाह ये पूरी तरह बगोला बनेगा, सैलाब बनेगा और इनको हुक्मरानों को सैलाब के अंदर डूब के मरना पड़ेगा और इनको इनके हकूक देने पड़ेंगे। और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अवाम इनके गिरेबानों तक हाथ पकड़ेगी और इन्हें भागना पड़ेगा और इन्हें हकूक देने पड़ेंगे और अशराफिया का दौर खत्म होकर रहेगा। आप एक तारफ है जी? सर, मैं हकीम जमशेद यूनाबाद से अपने टीम मेंबरान के साथ आया हूँ ताकि जमात इस्लामी का साथ दे सके और गरीब आवाम के लिए जो आजकल रोटी खाना मुश्किल हो चुका है उसके लिए हम आए हैं कि हुकूमत अपनी जो आए दिन पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रही है, जो महंगाई हो रही है, उसको हमारा फर्ज है कि हम मिलजुल कर उसका इनका साथ दें, उनका रास्ता रोकें, महंगाई को कम करें, उनको मजबूर करें। उनके खजाने में तो पैसा नहीं है सर, अपने वजीरों के खजाने कम करें, उनके खर्चे कम करें, उनकी जो सहूलतें हैं उनको कम करें और अवाम पर रहम करें। अच्छा जी, यानी वो खुद भी बोझ उठाएं, ना कि सिर्फ वो अवाम पर सिर्फ अवाम पे बोझ डालना जो है वो तमाम की तमाम सारा ये मैं अपने तो कर्जा दिया, उन्होंने तो कहना हमें वापस दो। जो इन्होंने याशियां की हैं, जो इन्होंने कर्जा लेके अपनी जरूरियात पूरी की, अवाम को तो इन्होंने कुछ नहीं दिया ना।
अच्छा जी, अवाम को अगर दिया है तो अवाम वापस करेगी ना, पैसा तो इन्होंने खाया, इनका फर्ज है ये वापस करें। ओके जी। धरने का सिर्फ ये मकसद है कि जो इतनी महंगाई हुई है ये खत्म। जी, अवामुन्नास को बताइएगा आपका धरने का क्या मकसद है? हमारे धरने का मकसद ये है जी कि अवाम को यानी चप्पे चप्पे पर एक एक फर्द को, गरीब घराना है, मुतवसत तबका है, लोगों का जीना दोभर हो गया है। मकसद तो लोगों की जिंदगी का अयां है जी कि इसका क्या मकसद है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जम्मे वकील इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि मकसद बताना नहीं पड़ रहा, और वो मकसद है कि ये पेट्रोल ने, बिजली के बिलों ने जो जीना दोभर कर दिया है, जो महंगाई की चक्की में लोग पिस रहे हैं। एक ही मुतालबा हमारा है कि अवाम पर रहम खाओ, और ज़ाहिर है कि ये जो महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है कि खुदा के लिए इसमें अवाम को कम से कम जीने का हक तो दो। उनकी बुनियादी ज़ालिमो शर्म करो, कुछ हया करो। एक मजदूर जिसकी 10, 20, 25, 30, 35 हज़ार रुपये इनकम है, उसके लिए घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। कई लोग रोजाना राब्ता करते हैं, क्या कई महीनों से बच्चों देखिए, को वो फीस नहीं IMF के गई। इस कंजे में फंसे हुए हैं। IMF को आपने कर्जा देना है, मुल्क की आमदनी आपके सामने है, वो क्या करें आपकी नजर में? हल सिर्फ जमात इस्लामी है। मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार जमात इस्लामी के ऊपर एतबार करके देखें। आपने नून को वोट दिया 35 साल से, आपने पीपल्स पार्टी को भट्टो से वोट दे रहे हैं, आपने खान साहब को वोट दिया। एक बार 5 साल के लिए जमात इस्लामी के ऊपर एतबार करके देखें। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ये जो 125 अरब डॉलर के कर्जे जिनकी वजह से हम IMF के आगे सरेंडर करते हैं और लोगों के ऊपर बर्डन डालते हैं, बार बार डालते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का सिर्फ एक सेक्टर, IT सेक्टर, ये कर्जे उतारने की सकत रखता है। इतनी ताकत है उसके अंदर। पाकिस्तान का किसान इतनी ताकत रखता है कि अगर उसको इनपुट्स प्रॉपर दी जाए तो पाकिस्तान की ज़राअत खड़ी हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो मंसूबा है। हम यहाँ की यूनिवर्सिटियों को, यहाँ के कॉलेजेस को, यहाँ के स्कूलों को, यहाँ के लड़कों को, नौजवानों को, खवातीन को इंशाल्लाह वो हुनर सिखा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा बनो काबिल कराची, वो शुरू हो चुका है। बनो काबिल 2 है, लाहौर के अंदर शुरू हो चुका है। हम पाकिस्तान के बच्चे को, मर्दों खवातीन को वो स्किल सिखाएंगे कि वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको समंदरों की नजर नहीं होना पड़ेगा, वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के डॉलर कमाएंगे।